Good morning, students. So today first we need to discuss the last two questions of the exercise 6.3. That was, find the smallest number that is divisible by the numbers 4, 9 and 10. So in this case what we have to do, the first thing we have to find out the LCM of 4, 9 and 10. तो भाई LCM निकालेंगे तो 2 ज़ा 9 एज इट इज़ रहेगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 2 1 ज़ा, फिर 9 एज इट इज़ रहेगा और ये 5 हो जाएगा। Then 3 1s are 3 5, then again 3 1s are and 5, and then 5 how many times? 1 times. This is the LCM. So the LCM becomes 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Now we made a mistake yesterday. Now today let's see. When we find the LCM, तो LCM में ऑलरेडी हम लोग देखें तो यहाँ पर पेयर्स बन रहे हैं, 1 2। सिर्फ किसका पेयर नहीं बन रहा है? 5 का। तो अगर हमें स्क्वायर बनाना है, अगर यहाँ पे 5 का भी पेयर बन जाए तो ऑलरेडी ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू, इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 5, मल्टीप्लाइंग बाय 5, दैट इज, ये कितना आ रहा था, इसको मतलब 4 4 9 जा 36 इंटू 5 180। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 5, what happens, we get 180 into 5, that is 900. Therefore required number is and we can clearly see that 900 is a perfect square. Clear? You can see all of the solution at once. ठीक है, now the next one, question number 10. So what was the question? Again it was a similar question and the numbers were 8 15 and 20. ठीक है, smallest square number which is divisible by 8 15 and 20. So again we'll go through the same procedure. First we need to find out the LCM. So 2 4s are 15 10, again 2 2s are 15 5, then further 2 1s are 15 and this is 5, then 3 1s are 5s are 5s are 5 1s are 1s are 1s are। ठीक है, now if we find out the LCM, अब LCM अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब जरा यहाँ ध्यान से देखते हैं, 2 का एक पेयर ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो 3 नंबर्स बचे इनका कोई भी पेयर नहीं भी बन रहा है, ये सब अकेले हैं। अगर इनके पेयर्स कंप्लीट करने तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 3 से, 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 5 से। सो अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 24 24 into 5 120। Got it? So by how much we have to multiply? Multiplying by 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, 3 के लिए एक 3 भी चाहिए और 5 के लिए एक 5 भी चाहिए। We get how much? 120 into 2 into 3 into 5, which is 30. That means 120 into 2 240, 240 into 3 720, 720 into 5 3600. Okay, therefore
required number is 3600. Clear? Fine. Now you can see the whole of the solution at once. Okay, clear. Now let us begin with our exercise 6.4 where we left yesterday. That is from question number 2. Okay, class. Now you can see what is the second question of the exercise 6.4. It says find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. ठीक है, so please remember, यहाँ मैं बता देता हूँ, जैसे आपका ये 64 is the first part. स्क्वायर्स में एक खास बात आपने पढ़ी होगी स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेज में कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यहाँ पे नोट के फॉर्म में मैं बता देता हूँ. ठीक है, इफ देर आर n डिजिट्स, किसी भी नंबर में n डिजिट है तो इसके स्क्वायर में कितने डिजिट्स होते हैं? इट शुड हैव n, वो सॉरी 2, वेट, इट विल हैव 2n और 2n plus 1. Got it? Clear? It will have 2n और 2n plus 1 digits. ठीक है, so what happens over here? अब यहाँ पर 64 है the first part which is 64. We know what is the square root. इसको calculate करना नहीं है, so we have to simply tell how many digits it has. Square root has 1 digit. ठीक, इसका हाफ कर दो. स्क्वायर के लिए हम लोग डबल करते हैं या डबल करके एक बढ़ाते हैं, तो स्क्वायर रूट के लिए ऑब्वियसली हम लोग उसका हाफ कर देंगे. अगर इवन डिजिट्स होंगी तो स्ट्रेट अवे हाफ, ऑड डिजिट्स होंगी तो एक डिजिट माइनस करके हाफ. ठीक है, नाउ सिमिलरली वी कैन कम टू व्हाट 144. ओके ओके, नाउ यू कैन सी हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 3. यहाँ पर कितनी थी? 2 डिजिट्स. ओके, वेट 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 वेट, आई हैव रिटन इट इनकरेक्टली. इट विल बी माइनस. ठीक है, in the square the digits are either double or 1 less than the double. ठीक है, now see here, this is 144, so how many digits? This is odd. इवन के केस में मैंने बताया था सीधे सीधे पता चल जाता है. ठीक है, तो अगर स्क्वायर से हम लोग वापस स्क्वायर रूट पे जाना चाहते हैं तो यू कैन सी इसको मैं बता दूं, ये नॉर्मल नंबर है, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज्ड. अगर किसी नंबर के स्क्वायर में n डिजिट्स हैं, ठीक है, सो उसके रूट में कितने होंगे? स्क्वायर रूट में अगर इवन है तो n/2 और ऑड है तो n+1/2. ठीक है, ये कैलकुलेट करके यहीं से आ जाएगा. ठीक है, यही है एक्चुअली. बस ये है कि अकल नहीं लगानी पड़ेगी आपको, यहाँ से डायरेक्टली अगर नॉर्मल नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसे पता चल जाएगा, और अगर स्क्वायर है ऑलरेडी और उसका रूट ले रहे हैं तो यू कैन फाइंड इट लाइक दिस. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू. तो यहाँ पर सिंस इट इज ऑड, ये इवन के लिए यूज होता है, ये ऑड के लिए, उसी तरह ये भी इवन के लिए और ये ऑड के लिए. नाउ सी 144 का स्क्वायर और इधर 144 इज द परफेक्ट स्क्वायर. इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है नहीं, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट्स हैं? 3. सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, +1/2. सो 3 + 1/2, दैट मीन्स 3 + 1/2 कितना हो गया? 4/2 इक्वल्स टू 2. सो इट विल हैव 2 डिजिट्स. इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगी? इट विल हैव हाउ मेनी? 2 डिजिट्स. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? The next question is 4489. Now how many digits? 4 digits. तो ये तो सीधे सीधे इवन है, तो इवन है तो मतलब डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे. सो हाउ मेनी डिजिट्स? अगेन 2 digits. Then what is the next one? It is 27225. 27225 काफी लंबा नंबर है. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 5 digits are there. अब जब ऑड का केस आता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ डिजिट्स +1/2 विच इज 3 digits. So its square root will have 3 digits. Now the next one and the last part of this question.
390625। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं इसमें? देयर आर 6 डिजिट्स, और 6 डिजिट्स का मतलब इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड इफ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर तो n/2 वाला फॉर्मूला यूज होगा। दैट मीन्स 6/2 काट देंगे, आंसर विल गेट 3 digits. Clear? Okay, now let us move to the next question. Question number 3. In question number 3 what we have to do, we have to find the square root of the following decimal numbers. अब decimal numbers दिए हैं 2.56, इसका निकालना है हमें स्क्वायर रूट। चलो भाई, then let's start. कैसे निकालेंगे? we'll find it using the division method. 2.56, और मैंने बताया था डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट पेयरिंग होती है और डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट। सो व्हाट इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2? इट इज़ 1। 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई? यहाँ पे 1 बचेगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो 1 + 1 बिकम्स 2, एक स्पेस छोड़ दीजिए, डेसिमल लगाएंगे तो विल बी एबल टू राइट डाउन द नेक्स्ट पेयर। अब यहाँ पर कितना लिखें? 2 7 ज़ा समथिंग, ठीक है ना? 2 7 ज़ा, तो चेक कर लेते हैं भाई। अगर यहाँ पर हम लोग 2 7 ज़ा लिखते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ऑन पुटिंग 2 7 ज़ा हाउ मच विल गेट? यहाँ पे कॉर्नर में सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 लिख देंगे तो इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 189 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, तो मतलब ये तो नहीं होना है। एक कम कर दो क्योंकि उससे ज़्यादा होना नहीं है, तो 2 6 इंटू 6 कर लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 15, बिल्कुल एग्जैक्टली वी हैव गॉट वी वांट। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 एंड द सेम नंबर विल बी रिटन ओवर हेयर इटसेल्फ। सो 6 6 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको तो विल गेट 156। दैट मीन्स वी हैव गॉट, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? इट विल बी 1.6. Clear? Now let us move to the, you can see the whole of the question once, and then we'll move to the next question, which is 7.29. Now second question is 7.29. now if we start it 7.29, again सेम प्रोसीजर। अब इसका नियरेस्ट स्क्वायर कितना है भाई? 7 का 9 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए कौन सा लेंगे? 2 ही लेंगे। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचा? 3। इसको क्या करते हैं हम लोग? जिसको मल्टीप्लाई किया है जिन दोनों को, उनको ऐड कर लेंगे। तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2 बिकम्स 4। डेसिमल लगाएंगे, देन विल बी एबल टू कॉपी द नेक्स्ट डिजिट्स। फिर यहाँ देख लेते हैं, 4 8 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर 8 लिखेंगे तो क्या होगा? 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ भी लिखेंगे, तो 8 8 ज़ा 64 लास्ट में आएगा। नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे? एक कम कर लीजिए, इट विल बी 7, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 + 4 32, कैंसिल। सो देयरफॉर the square root of 7.29 becomes how much? 2.7. Clear? Now let us move to the next part. The next part, that is your third part, is 51.84 exactly. Now let us start. 51.84, फिर पेयरिंग कर ली, ठीक है। आफ्टर द पेयरिंग व्हाट वी नीड टू डू, फिर 51 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 49। सो 49 है तो मतलब 7 7 ज़ा 49, माइनस करेंगे विल गेट 2 ओवर हेयर। इन दोनों को क्या करना है? हमें ऐड कर लेना है। सो हाउ मच विल गेट? 14, ठीक है। एक डिजिट यहाँ लिखनी पड़ेगी हमें, डेसिमल लगाएंगे तो विल गेट द नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पर कितना कर लेंगे? सिंपली यू कैन सी
14 टू ज़ा 28 दिख रहा है, और यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 आएगा भी, तो बिल्कुल सही है। 2 टू ज़ा, तो 2 टू ज़ा 4 और ये 14 इंटू यू कैन सी 284, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल्स टू 7.2। ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट इज द फोर्थ पार्ट विच इज हाउ मच, कहाँ गया, 42.25। सो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। फिर से विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। 42.25 पेयर नियरेस्ट स्क्वायर 6 6 36, 6 बच जाएगा, यहाँ पर 6 उतारेंगे, इट विल बिकम 12, डेसिमल लगाया, विल गेट द नेक्स्ट पेयर, विल पुट 5 ओवर हेयर नाउ बिकॉज लास्ट में 5 चाहिए, और यू कैन सी 12 5 से 60 आ रहा है, सो विल गेट एग्जैक्टली 625 एंड 625 कैंसल्स, सो द square root of 42.25 becomes how much? It becomes 6.5. ठीक है, now the next part is fifth part which is 31.36 clear? थ्री 1.36 फिर से पेयरिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसका नेक्स्ट स्क्वायर 5 क्योंकि कम लेना होता है, इसलिए ये हो गया 5 5 सा 25। सो यहाँ पर बचेगा कितना 6, देन प्लस 5 इट बिकम्स 10, एक स्पेस डेसिमल लगाने पे विल गेट द नेक्स्ट, अगेन यू कैन सी 10 6 ज़ा, ठीक है, सो 10 6 ज़ा, अगर 6 से करेंगे लास्ट में 6 भी आ रहा है, वी कैन इजीली गेट इट, मल्टीप्लाई करने पे विल एग्जैक्टली गेट 636। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 is how much? It is 5.6. Clear? You can see all the three questions together. Okay, now let us move to the next question. Now question number 4 says find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसको सब्ट्रैक्ट करें, सो वी शुड गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर्स को हम लोग हाउ डू वी सॉल्व, वी गो फॉर डिवाइड करेंगे हम लोग, मतलब विल फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड पहले, ठीक है, एंड विल नॉट कन्वर्ट दम इनटू डेसिमल। ठीक, जैसे कि ये 402 है, पेयरिंग किधर से, पीछे से स्टार्ट होती है, विल गो फॉर इट नाउ। अभी कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ तो 0 बच गया, ये 2 + 2 कितना हो गया 4, नेक्स्ट पेयर पे आएंगे, फिर हो जाएगा 0 2। ऐसे तो काम चल नहीं रहा है, इस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल अपने से, क्योंकि इसके आगे भी हमें नंबर चाहिए होंगे, 4 से छोटा है 2। सो यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, 20 2 0 ज़ा, ठीक है, तो जब 0 ज़ा ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0, अभी भी 2 बचा है, ठीक है, ब्रदर मैंने यही गलती कर दी थी, आई मेड अ मिस्टेक, नहीं सही है, ओके रियली फाइन। सो 20 तक आ गया, लेकिन फिर ये डेसिमल में आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ा भी देते हैं कुछ, अगर यहाँ डेसिमल लगाते भी हैं तो नेक्स्ट पेयर आएगा, ठीक है, 40 रहेगा। अब व्हाट विल डू, अभी भी कुछ भी लिखेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा, सो एग्जैक्टली सब कुछ सही सही आ नहीं रहा है, ठीक है। इन दिस केस व्हाट विल डू, देयरफॉर ये 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, कट नहीं रहा है, सो व्हाट वी नीड टू डू, जो भी रिमाइंडर यहाँ बचेगा तो 402 माइनस 2 जो रिमाइंडर बच जाए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वी गेट 400 एंड वी नो दैट 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर वी
have to subtract 2. Clear? Then come to the second part, which is how much? For 1989. 1989. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करें। फिर डेसिमल के पहले से, तो मतलब 2 पेयर। ये जाएगा 4 ज़ा, नियरेस्ट पेयर है 4 4 ज़ा 16, 3 बचा, +4 कर लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं, 4 + 4 बिकम्स 8। अब 8 के बाद यहाँ पर कुछ लाना है, क्या लाया जाए? 8 4 ज़ा 32, राइट? तो करके देख लेते हैं। 4 4 4 4 ज़ा 16 and 4 8 ज़ा 32 + 1 3, so it becomes 3 and 5 53 बच गया। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड करना था हमें? 4, इट बिकम्स 88। सो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। फर्दर डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में हमें लेके जाना नहीं है। सो जो भी रिमाइंडर है, व्हाट इज द रिमाइंडर? नाउ दिस इज द रिमाइंडर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो भी रिमाइंडर होता है, देयरफॉर 53 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ऐसा क्यों किया? ठीक, ऐसा इसलिए करते हैं, ध्यान से देखिए, फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ तक का देखिए, ये 53 अगर हट जाएगा तो जो भी नंबर बचेगा वो 44 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सो 1989 माइनस 53 बिकम्स 1936 विच इज द स्क्वायर ऑफ 44। ठीक है, यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, which is how much? 3250, 3250। ओके, नाउ फिर से 3250 का विल बिगिन द स्क्वायर रूट प्रोसीजर। 3250 पीछे से पेयरिंग, नियरेस्ट स्क्वायर है 5, मतलब 25, तो 5 5 से 25, पेयर किया, यहाँ से बचा 7, यहाँ से +5 कर लेंगे, इट विल बिकम 10। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 750, 10 7 जा, तो यहाँ से 7 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 49, दैट मीन्स 749 आ गया। रिमाइंडर बच गया 1। और अगर इसको लिखते हैं हम लोग अपने मेथड से, 7 है ये, ठीक है, सो इट बिकम्स 114, ऑब्वियसली 2 लो देन दिस। और इतना अगर कम है, सो व्हाट वी नीड टू डू, सीधे 3250 में से कितना माइनस करेंगे? 1। दिस इज द रिमाइंडर, सो 3249 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, किसका? 57 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, now therefore 1 should be subtracted। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1। clear? okay, now let us move to the next question। ठीक है, okay, which is fourth part, 825। डिवाइड करना स्टार्ट करें। पीछे से पेयरिंग, नेक्स्ट स्क्वायर 2 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 बच गया, 2 + 2 बिकम्स 4 हेयर ऑल्सो। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 425, कितनी बार जा रहा है? 10 ज़ा समथिंग, लेकिन 10 ज़ा लिख नहीं सकते हैं, सो व्हाट विल डू इट 9 टाइम्स। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा नहीं, ये भी ज़्यादा हो गया। ठीक है,
9 81, 9 4 36, गलत, मतलब यू हैव डन इट रॉन्ग, देखा टेस्ट नहीं किया था। ओके नाउ वेट, लेट अस राइट इट अगेन, अदरवाइज बहुत गंदा हो जाएगा। 8 2 5, ये पेयर, सो 2 2 4, यहाँ से बचेगा 4, पूरा पेयर उतार लेंगे 425 और ये +2 बिकम्स 4। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं पहले, 10 जाएगा नहीं, 9 हम लोगों ने चेक ही कर लिया है, सो वी कुड चेक फॉर 8 1s 4 8 into 8, 8 8 64, 8 4 32, 8 8 64, 8 4 30, 384, yes this is correct। so यहाँ पर 8 and this also 8, so how much it becomes 384, कितना बचेगा 1 4, ठीक है ख़त्म, क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे, सो ऑब्वियसली इसमें अगर 8 ऐड करेंगे इट वुड बिकम 56, और यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे ऐसे ऑलरेडी इससे बड़ा है, और यहाँ लिखने का मतलब 4, तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, 41 इज़ द रिमाइंडर, देयरफॉर कितना हो जाएगा ये 825 माइनस 41, अगर माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 784 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर कितना सब्ट्रैक्ट करना है, देयरफॉर 41 शुड बी subtracted। okay, now the next one, fifth part, which is how much, which is 4000। अब 4000 पे आ जाते हैं, पीछे से पेयरिंग, ठीक है। नाउ नियरेस्ट स्क्वायर 36 विच इज 6 6 4 बच गया, प्लस 6 कर लिया, यहाँ से 12 हो गया, नेक्स्ट पेयर उतार लिया, 12 हाउ मेनी टाइम्स, 12 3 जा समथिंग, इसी तरह कर लेते हैं, इट विल बिकम 369, रिमाइंडर विल बी 31, ऑब्वियसली इससे छोटा है, सो कितना हो जाएगा अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4000 माइनस 31 विच बिकम्स 3969 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 63। यहाँ से जो नंबर आता है उसी का स्क्वायर होता है, ये 63 है, डेसिमल नहीं लगाया मैंने, पेन चल गया बाय मिस्टेक, ठीक है 63। सो हाउ मच वी शुड बी सब्ट्रैक्टेड, देयरफॉर 31 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। आगे आपको पता है फॉर व्हाट, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द 6th क्वेश्चन, ठीक है, रदर 5th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 5 से, इट सेज फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। अभी तक हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और अभी तक क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट, अब क्या करना हमें, ऐड, और ये पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमें स्क्वायर रूट भी निकालना था, इसमें भी निकालना है, सो यू कैन सिंपली राइट, ये किसका स्क्वायर है, 63 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से पता चल जा रहा है जो नंबर यहाँ पर आ रहा है वही इसका स्क्वायर है, तो ऐसा आप बाकी सारे क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। ये किसका स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्लियरली यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसी का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, दिस वन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में द फर्स्ट पार्ट इज 525। नाउ प्लीज रिमेंबर इनिशियल मेथड इसका सेम है लेकिन लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने में हम लोग डायरेक्टली रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट जब ऐड करना होता है द प्रोसीजर इज अ बिट डिफरेंट। सबसे पहले वील डेफिनेटली गो विद द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट। यहाँ से 2 to the 4,
how much we get 1 plus 2 becomes 4. नेक्स्ट पेयर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर कितना कर लेंगे? you can see 3 times जा रहा है, so we'll go for it 3, but यहाँ पर you check it once, 43 into 3, 3 3 is 9, 3 4 is 12, गड़बड़ है. So how much will go for 22, 2 rather. So 2 2 is 4, 2 4 is 8. How much is the remainder? 1 and 4. Clear? Now see, अब ये से छोटा तो हो गया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड करके जो नेक्स्ट नंबर निकालना है, यस में अगर हमें इस नंबर में कुछ ऐड करना है तो ऑब्वियसली देखिए ये 22 का मतलब क्या हुआ, अगर इतना हटा दें जैसे कि बाकी क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, इतना रिमूव कर दें तो विल गेट दिस, यस और नो. अब ये नहीं कि इसमें इतना ही ऐड कर देंगे, 41 को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, गलत. ऐसे इसका मतलब है अब जो अगला परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 23 हो गया. ठीक है, देयरफॉर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 22 निकाला हम लोग ने, तो इसके बाद वाला क्या है? 23 विच इज 529. इज इट क्लियर? 529. ये काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि इसका नियरेस्ट कम वाला परफेक्ट स्क्वायर पता चल जाए, जिसके थ्रू हम लोग को ये पता चल जाए कि इसके बाद वाला इससे बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा होगा. यही होगा, 23 का स्क्वायर होगा विच इज 529. अब इसमें से कितना? देयरफॉर 529 माइनस 525 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 4. सो हाउ मच शुड बी एडेड? देयरफॉर 4 मस्ट बी एडेड. ठीक है, एंड जब 4 को ऐड कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 कितना आ जाएगा भाई? ऑलरेडी वी नो इट विच इज 23. क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 1750. अब 1750 को जरा सॉल्व करें, देखें. अगेन विल गो थ्रू द सेम प्रोसीजर. पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर हमें कुछ करना है. ठीक है, सो 1750 पीछे से पेयरिंग 4 4 16. ठीक है, 1 बच गया. नेक्स्ट पेयर उतार लिया, इसको 4 4 ऐड कर लिया, इट विल बिकम हाउ मच? 16. तो 16 ऐसे तो जा नहीं रहा है, मतलब 9 सा. ठीक है, रेदर 9 सा भी नहीं जाएगा, इससे कम हो गया. ठीक, सो इन दिस केस व्हाट वी डू, 0 0 कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि 4 से तो जाएगा नहीं, तो ये इसी के आसपास आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अब ये 4 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, सो ऑब्वियसली ये 40 के स्क्वायर के आसपास होना चाहिए. सो अब 40 का स्क्वायर अगर लाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ओह शिट, आई मेड अ मिस्टेक. I have copied it incorrectly. It was 4 plus 4 which is 8, not 16. Now how many times? Near about 2 times. So 2 times जा नहीं पाएगा, 1 टाइम ही जाएगा. So how much it becomes? यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा 6. ओके, अब 41 है तो नियरेस्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई इसके बाद वाला? विच इज 42 का स्क्वायर. और 42 का कहाँ गया? 42 का स्क्वायर कितना होता है? 2 3 6 4. क्लियर? नहीं, गलत हो गया. 1764. Now this is the square of 42.
और इसके हिसाब से कितना ऐड करना है, देयरफॉर 1764 माइनस 1750 which is 14. Therefore 14 must be added. इसका स्क्वायर रूट तो यू नो इट वेल, 1764 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, कितना निकाला मैंने 42. क्लियर? दिस आई हैड कॉपीड बाय मिस्टेक फॉर यहाँ भी कर दिया था, so forget this, you have to do like this. Okay, is it clear? Then the next one. Then let us come to question number 6. In a right triangle, or sorry, find the length of the side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 441 मीटर स्क्वायर. एंड वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज हाउ मच, साइड इंटू साइड इक्वल्स टू एरिया. सो लेट द साइड बी x. अगर x मान लेते हैं हम लोग, so it will be something x into x equals to 441. यहाँ से it will become x square equals to 441. Now we don't need to find the value of x square, we have to find the value of x. और जब भी x की वैल्यू निकालनी होगी, so what we'll do, we'll put a square root over here. ठीक है. so अब 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, you can calculate it यूजिंग एनी मेथड. यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं डिवीजन मेथड का यूज़ करके फटाफट. 441 पेयर किया, इधर लाए, 2 2 सा 4. ओके, यहाँ से तो 0 बच गया. 2 + 2 बिकम्स हाउ मच, 4. एक पेयर. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पेयर, इट इज़ 41. अब ध्यान से देखिए, 1 जा रहा तो लिख लीजिए 1. क्लियर? सो the answer is 21. Okay, so the length of the side of the square is 21 meter. Okay, now let us come to the question number 7. You can see the question number 6 till I note down the question number 7 now. Okay, come to question number 7. इन आ राइट ट्रायंगल ABC. जब भी फिगर वाला ऐसा कोई क्वेश्चन बोले तो उसमें ड्रॉ कर लीजिए ABC टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल बी को बताया 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ABC. अब आपसे क्या कहा है, इफ AB इक्वल्स टू 6, BC इक्वल्स टू 8, फाइंड AC. AB इक्वल्स टू 6, BC इक्वल्स टू 8, फाइंड AC. AC की लेंथ में निकालनी है, सेंटीमीटर्स में है लेंथ. ठीक है. नाउ सी, ऑब्वियसली जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट यही वाला है. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता नहीं है, विच इज आर AC. परपेंडिकुलर इज 6 एंड बेस इज 8, सो इट बिकम्स 36 + 64 100 और ये h स्क्वायर. तो h की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. नाउ यू कैन यूज एनी मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 100 which is, and the square root of 100 is how much, 10. So the length of AC equals to 10 सेंटीमीटर. और यहीं पर अगर इसका हम लोग सेकंड पार्ट कर लें, ठीक है, विच इज अगेन कि फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वही है ABC, बट यहाँ पर लेंथ अलग अलग दी है. नाउ दे हैव गिवन AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर. एंड BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर. आपकी क्या मिसिंग है, आपकी परपेंडिकुलर मिसिंग है, दैट इज AB. अब यहाँ से फिर से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप पाइथागोरस थ्योरम which is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. So hypotenuse कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं, लेट इट बी P स्क्वायर. और बेस कितना है 5 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 169 इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 25
इधर से क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, सो इट बिकम्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144। अब पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 144 विच इज 12, so the length of AB will be 12 centimeter. Okay, is it clear? Fine. Now let us move to the next one. Now question number 8, what does it say? It says a gardener has 1000 plants. How many plants? Number of plants, they are 1000. Now what happens, he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या करना है, लेट नंबर ऑफ रोज, जैसा हम लोग ने इससे पहले भी किया कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होने चाहिए, सो नंबर ऑफ रोज एंड columns be x, therefore total plants equals to x square. so यहाँ के हिसाब से तो x square, that means the number should be a perfect square, but if we look at the number of plants he is already having which is 1000, this is not a perfect square. और लास्ट में आपसे पूछा कि और कितने प्लांट्स चाहिए उसको प्रॉपरली उसको उस गार्डन में प्लांट करने के लिए, सो ऑब्वियसली दैट मीन्स वी नीड मोर प्लांट्स, तो हमें कितने और प्लांट्स चाहिए, दैट मीन्स इसमें कुछ और प्लांट्स लाने पड़ेंगे, और इतने लाने पड़ेंगे जब टोटल प्लांट्स को देखेंगे हम लोग, सो इट शुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अ नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, जो हम लोग कर रहे थे। सो अगेन व्हाट विल डू, पेयरिंग कर ली है, 3 3 9, कितना आ गया, 1 आ गया, सेकेंड पेयर 3 + 3 बिकम्स 6, और ये 6 कितना चला जाएगा, 1 सा, सो 6 1 सा बिकम्स हाउ मच, 61, और यहाँ से बचेगा 39, ऑलरेडी यू कैन सी इससे कम है। अब इसके बाद वाला 31 के बाद वाला स्क्वायर कितना है, ठीक है, 31 के जस्ट बाद वाला स्क्वायर होता है 32, एंड 32 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ, तो द स्क्वायर ऑफ 32 इज हाउ मच, 1024। अब यहाँ के हिसाब से देखें, सो प्लांट्स उसके पास कितने थे, 1000, नेक्स्ट स्क्वायर कितना आ रहा है, 1024, सो हाउ मेनी मोर प्लांट्स, सो 1024 माइनस 1000, therefore he needs 24 more plants, और हर एक रो में, ठीक, एंड वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1024, इसी के बराबर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 विच इज 32, सो हाउ मेनी रोज, देयर शुड बी 32 rows and 32 columns in the garden. Is it clear? You can see the question. Okay, now the next question, question number 9. Now what does it say? It says there are 500 children in a school. कितने बच्चे हैं, total students or children you can say, there are 500. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. In how many children would be left out in this arrangement? अब ध्यान से देखिए, let number of rows and columns be x. अब जरा ध्यान से देखिए, it is saying there are total 500 students. कितने बच्चे हैं टोटल, 500 बच्चे हैं। पीटी ड्रिल के लिए उन्हें इस तरह रखना है कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे हमारे पास। अब
सिंस दिस 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑब्वियसली या अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें जबरदस्ती, तो या तो कुछ बच्चे ऐड करने पड़ जाएंगे, बच्चे हमें ऐड करने नहीं है। लास्ट में आपसे बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट, ठीक है। सो लेफ्ट आउट का मतलब हमें वो बताना है कि कितने बच्चों को छोड़ देना पड़ेगा टू मेक अ परफेक्ट ड्रिल। सो यहाँ से इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, कौन वाला, कम वाला, मतलब हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 बचा, 2 0 उतार लीजिए, 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाउ मच, 4 2 ज़ा 84, 16 बच गया, तो ज़्यादा हो गया। सो अब रिमाइंडर कितना आया, 16। इफ यू रिमेंबर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम लोग सीधे रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दे सकते हैं। देयरफॉर 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट, ठीक है, 16 बच्चे छूट जाएंगे। एंड नाउ सी वी नो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, 500 माइनस 16 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट विच इज इक्वल टू 484। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 484 विच विल बी हाउ मच, ये देखिए कैलकुलेट करके रखा है ऑलरेडी, 22। So students will be standing in 22 rows and 22 columns. Okay class, thank you.